Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in this video, we will discuss funny moments, funny situations. Now what happens is, say you visit a branch and you are looking for a bank job, or you are selected for a bank job, you meet a bank person and ask him, should I join banking? In some cases, you may get positive response, yes, you should join. But in some cases, they may say, don't come, this is not a good job, this is this thing, and they will narrate a series of negative things before you. And a new candidate who is yet to join the job, who is yet to enter the sector, is taken aback. And he feels he has committed some mistake by cracking such an exam. Now my simple question to this fellow is, who is advising not to join, why can't he quit the job first? First he should quit the job and then give such type of guidance to others. Now he is continuing with the job. The one of the major reason is he is not getting job elsewhere. Had he got the job, had he continued? No. That means the sector which is giving bread and butter to this person and the family, he is not happy. But he is always looking for a thing that is not available to him. And this is a common human thrust. We always aspire for the things where we are not welcome. But we always disrespect the things where we are accommodated. And this type of psyche always make the person unhappy. If these people start enjoying the job, if these people start learning how we can remain happy despite all odds, they can live their life happily. Otherwise, unhappiness will chase them and they will only give wrong guidance to others. The real situation is, our country biggest problem is unemployment. Very few sectors are giving employment. Getting employment is a very, very tough job. And if you get the job, don't throw your job so easily. This is my advice. Rest, you are all intelligent people. You are all qualified people. Nobody forces you to join banking. Nobody comes to your house and says with folded hand, please come to my bank and work. No. You are getting this job after a lot of struggle. You are getting this opportunity after a lot of struggle. So leaving the job, not joining the job, merely on saying of some person who is not leaving the job, continuing with the job. He is giving or she is giving advice to others, but continuing with the job because this fellow is not getting any other opportunity. Okay, the people, those are satisfied, they will always give good advice. But there are some people, they are still working, they are continuing to work, but they will give advice to others not to join. I think this is up to you, how you rate these people. But in my eyes, I don't read that this is a good thing. You may not be happy, but don't discourage others. This is my advice. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. एक बहुत ही मज़ेदार बात हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ये पूछते हैं. काफ़ी लोग बैंक में नौकरी कर रहे हैं. जब आप बैंक का कंपटीशन देते हैं, सिलेक्शन होती है, तो जिज्ञासा होती है, आप बैंक में जाते हैं, आप पूछना चाहते हैं कि बैंक की नौकरी कैसी है, मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ. अब इसमें कई एम्प्लॉइज़ तो कहते हैं ठीक है, आ जाओ, अच्छा है. कुछ एम्प्लॉई आपको बहुत शिद्दत के साथ ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मत आना, ये अच्छा नहीं है. मगर वो एक प्रश्न का जवाब नहीं देते कि अगर ये नौकरी अच्छी नहीं है तो वो क्यों कर रहे हैं.
वो क्यों नहीं इस नौकरी को छोड़ देते और किसी ज़रूरतमंद के लिए जगह खाली कर देते? हो सकता है वो इसलिए नहीं छोड़ रहे, उनको कहीं और नौकरी नहीं मिल रही। अगर ऐसा है कि वो इसलिए नहीं छोड़ रहे कि उनको कोई और नौकरी नहीं मिल रही, तो ये कहाँ तक ठीक है कि जिसने आपको एकोमोडेट किया, आपको ब्रेड एंड बटर दी, आपको मौका दिया कि आप पैसे अर्न करो, आप उसके बारे में अच्छा मत बोलो, और जहां आप जाना चाहते हो वो आपको वेलकम ही नहीं कर रहा, वो आपको अपने पास बुला ही नहीं रहा, वो आपको नौकरी करने का मौका दे ही नहीं रहा, आप उसकी तारीफ़ें कर रहे हो, उसके बड़े बड़े कसीदे कस रहे हो। ये क्या है? ये एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। जो लोग हमें इग्नोर करते हैं, हम उनके तो पीछे भागते हैं, और जो हमारे पास आना चाहते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारे पास रहना चाहते हैं, उनको हम निगलेक्ट करते हैं। और ये हमारे जीवन के विभिन्न आयामों में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो चीज़ मिल जाती है उसकी कदर नहीं रहती, और जो नहीं मिलती, जिसे हम बोलते हैं मृग तृष्णा, हम उसके पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। फिर वो मिल जाती है, वो बुरी लगने लगती है, फिर किसी और चीज़ के पीछे भागने लगते हैं। सपने देखना बुरा नहीं है, पर अपने बुरे एक्सपीरियंस से दूसरे लोगों को गलत सलाह देना ठीक नहीं है। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग सकती है, पर दूसरे के लिए वो अच्छी हो सकती है। पर अगर आप कोई भी सलाह दे रहे हैं किसी को, तो सबसे पहले लीड बाय एग्जाम्पल। आपको सेक्टर अच्छा नहीं लग रहा, एकदम छोड़िए उसको, बेकार बैठ के देखिए कितना अच्छा लगता है आपको। दूसरे को मौका दो ना। लाखों लोग इस समय एम्प्लॉयमेंट की तलाश में हैं। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और लाखों लोग बहुत जद्दोजहद के साथ इस नौकरी को पा पाते हैं, और जब वो ऐसे शब्द सुनते हैं तो ये तीर की तरह उनके दिल में लगता है। तो मेरा सभी से सलाह है कि जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं या नौकरी कर रहे हैं, या तो वो उस सेक्टर को छोड़ दें, फिर कहें, और अगर आप उस सेक्टर में कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको कोई और सेक्टर आपको नहीं ले रहा है, तो कम से कम जो लोग आना चाहते हैं उनको अननेसेसरी डिस्करेज ना करें। बाकी तो देखो, हर आदमी की अपनी मर्जी है। कोई सेक्टर आपको बुलाने नहीं जा रहा घर पे कि आओ मेरे यहाँ नौकरी करो। ये आपने फैसला करना है आपके लिए क्या है सही है, क्योंकि जो सेक्टर है वो वैसे ही काम करेगा, वो आपके लिए अपने को परिवर्तित नहीं करेगा। ये यथार्थ है। जितनी जल्दी हम इसको समझ जाएंगे उतनी जल्दी हम सुखी हो जाएंगे। और अगर मेरे को एक नौकरी लग चुकी है, अगर मैं उसमें कैसे सुखी रहना है ये सीख जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और अगर मैं हमेशा दुखी रहूंगा तो इसमें कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, और आपका जीवन ऐसे ही निकल जाएगा दुख के साथ। किसी भी चीज़, किसी भी परिस्थिति में सुखी रहना, खुश रहना, ये भी हमारे ऊपर निर्भर है। गॉड ब्लेस यू ऑल।